Now, the most awaited award. Here goes to the parent who helps their child in every subject, whether it's handwriting, speaking, classroom discipline, sports, proper uniform, etc. And the award goes to Mr. Brajesh Soni and Mrs. Neha Soni, the proud parent of Adya and Aradhya Soni. Thank you so much, dear parents. Ms. Deepshika. Proud parent of Adya Soni and Aradhya Soni of KG2A to please share her views being a part of Hema family. It's a very good morning to one and all present here. Myself, Neha Soni, mother of Adya Soni and Aradhya Soni of class KG2A. I would like to big thanks to the respected principal ma'am, vice principal ma'am, and headmistress ma'am, and all the lovely teachers. Today is a very big and special day for me, and I feel very lucky to stand here as a proud parent of a happy and confident child. I got honored to speak and share the thought on behalf of all the parents are present here. Firstly, I would like to appreciate the school environment was very creative and innovative in all fields like learning, teaching, playing, and all the extracurricular activities. They conduct assembly for the kindergarten separately and a special day celebrate on every Friday. School gives a very important role of our child growth. This school gives a very joyful learning environment for our child. Now I would like to big thanks to the class teacher of my child, Mrs. Maya Nair ma'am. Dear ma'am, you are not only a teacher, but you are best guide, best mentor, best philosopher, and very first a good friend of my child. Your love, care, support, and understanding for my child is like a mother. Your previous learning approach is really amazing. Your way of teaching is really commendable. Now I would also like thanks to the Manjusha ma'am. Dear ma'am, because of your fun-loving nature, children like you and connect with you very quickly. The extra effort you put in your studies and extracurricular art and activities are really amazing and commendable. Whatever learning, knowledge and information given by both of you to the children about colors, natures, festivals and all the things they like and learn, and they take it very seriously in their lives. They goes home and play the role of Maya ma'am and Manjusha ma'am, and was taught to them in their classroom. They repeat at home and also teach it to their brother. This shows they understand the learning concept is very clearly. We will always grateful be your selfless love and support. Thank you so much, ma'am. Once again, a big
thanks to the school, all the teachers and entire Hema family. Thank you so much. To share her views. Principal ma'am, teachers and all parents. Good afternoon, dear principal ma'am, teachers and all parents. First of all, thank you so much giving this opportunity to introduce myself. My name is Priya Timrawal. I live in Bhopal. I am really so happy. My son Tanish Timrawal, student of Hema School, and I have two sons. My elder son Tanish Timrawal already studying in school, and my second son, I want to take admission in this month. I'm really so happy. My child is very improvement in this school. All teachers, thank you so much, and all staff. Dear Kavita ma'am, Manjusha ma'am and Maya ma'am is very supportive for all children. Any types of activity, handwriting, sports, game and much more. Lots of Thank you so much, Kavita ma'am, Manjusha ma'am and Maya ma'am is very supportive for all children. All types of activities, handwriting, sports, games, much more. Once again, thank you so much, Principal ma'am. Provide family atmosphere for all children. Thank you so much, and all children, very congratulations for new beginning and bright future. Thank you so much, bottom of my heart. Thank you so much. All the fun and laughter of kindergarten will be such an amazing memory for the little learners. Through a goodbye dance, little learners are ready to express their gratitude. Please welcome them with a round of applause. It is my great honor to introduce to you today our graduating class.
Guests with us. I really want to thank you, all of you, for giving us your precious time and blessings to our little ones. Now, I would like to invite Ms. Bharti ma'am to please come on the stage and share her experience. And thank you all. स्कूल छोड़े मुझे बहुत समय हो गया है, बिकॉज काफ़ी साल तक स्कूल में काम किया है एंड उसके बाद एक डिफरेंट उसमें हूँ मैं जहाँ करिकुलम डेवलप करते हैं, टेक्स्ट बुक डेवलप करते हैं एंड सारा टीचर्स का ट्रेनिंग करते हैं. तो बट आई कैन सी कि जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो इतने सारा पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए टीचर्स को कितनी तैयारी करनी पड़ती है एंड फॉर दैट आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैंडल द प्रोग्राम एंड जिस तरह से बच्चों ने आगे बढ़ के काम किया. आई रियली सैल्यूट. सो एक बार तो टीचर्स के लिए सबके लिए ताली. दूसरी चीज कि जिस तरह से वेल थॉट एंड वेल प्लान ये पूरा कार्यक्रम था, आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट. सो पहले तो पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता ही है कि बहुत बड़ा स्टेप है एक्चुअली. 3 to 6 इयर्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ के लिए, बच्चे के जीवन में. इस समय में 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है. उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है अगले इयर्स में काम करने के लिए. सो दीज आर द फाउंडेशन इयर्स वी हैव टू वर्क अपॉन. और इन इयर्स में बेसिकली जो काम किया जाता है वो 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स पे काम किया जाता है. वन इज फिजिकल, सेकेंड इज आपका सोशो इमोशनल, थर्ड इज क्रिएटिव डोमेन है, लैंग्वेज है एंड कॉग्निटिव डोमेन है. तो बहुत सारी चीज़ें मैं जब यहाँ देख रही थी तो आई कैन सी कि इन सारे डोमेन्स पे बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है. लाइक कॉग्निटिवली बच्चे एक्टिव हैं, क्रिएटिव डोमेन तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, सोशल इमोशनल पे बहुत काम हो रहा है. एंड वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट कि वी आर टीचिंग चिल्ड्रन टू बी थैंकफुल. बहुत बड़ा मामला होता है. हम लोग आजकल ना धन्यवाद करना भूल गए, हम लेना जान रहे हैं, देना भूल गए. इनफैक्ट किसी को रिकग्नाइज करना भी भूलते जा रहे हैं कि नहीं किसी ने हमारे लिए कुछ किया है. तो आई रियली अप्रिशिएट कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स को थैंक्स कह रहे हैं, स्कूल को थैंक्स कह रहे हैं एंड स्कूल जो है वो पेरेंट्स को थैंक्स कह रहा है. सो नाइस. मतलब बहुत सुंदर जेस्चर है कि पेरेंट्स को रिकग्नाइज करना है कि जो पेरेंट्स बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज करना. सो अच्छा लगा मुझे एंड इट इज रियली गुड टू सी. 2-3 चीजें जो मैं आपसे कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ और इसीलिए मैं हिंदी में बोलना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि बिकॉज बहुत अच्छे से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ. बिकॉज आई एम नॉट दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. सीखे हैं इंग्लिश अपनी लॉन्ग रन में, सीखना पड़ती है, बट जब वो कम्युनिकेट करने का मामला होता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी. दैट्स व्हाई. और शायद बात पहुँचाना आसान होता है अपने विचारों के साथ. सो 2-3 चीज़ें जो मुझे हमेशा लगती हैं मैं जब भी पेरेंट्स से बात करती हूँ, मैं टॉक्स हैंडल करती हूँ, इंटरव्यूज देती हूँ, काफ़ी सारी सभाओं का संबोधन चलता रहता है इस तरह से. तो एक तो ये कि बच्चों को सवाल करना सिखाइए और बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए. है ना, तो एक जनरल टेंडेंसी होती है बहुत सवाल करता है, ये बहुत परेशान करता है. बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए और बच्चों के सवालों के जवाब को खुद भी ढूंढिए. एज एन पेरेंट मुझे हमेशा लगता है पेरेंट होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. आसान नहीं है किसी बच्चे को बड़ा करना और उसको इस तरह से बड़ा करना कि वो समाज के लिए कुछ कर सके, हमारे लिए कुछ कर सके. तो अच्छा इंसान बनाना एजुकेशन का लक्ष्य होता है. स्कूल इज डूइंग देयर पार्ट. स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो रही बट पेरेंट के पार्ट पे हमें बहुत सारी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट होता है. तो जो आज पेरेंट्स को यहाँ सम्मानित किया गया उसका एक अपना तरीका था. इट्स गुड कि आप लोग स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के नर्चर में हम जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं हम खुद सीखें. बच्चों के सवालों का जवाब देना सीखें, बच्चों के सवालों को ख़त्म ना करें. जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर होंगी और जितनी ज़्यादा स्पष्टता आएगी उतना ज़्यादा हम दूसरों की बताई चीज़ों को बिना सवाल किए मानना बंद कर देंगे. आप लोग देख रहे होंगे आज जो समाज का हाल है वो इसीलिए है कि हम रटते आए हैं, हमने समझा कुछ नहीं है. अगर शिक्षा में सब चीज़ें समझी जाने लगेगी ना तो ये जो ढोंग चल रहे हैं, ये अंधविश्वास चल रहे हैं, ये सब परेशानियां चल रही है, ये सब पहले ही खत्म हो जाएगी. तो हमने सवाल करना नहीं सीखा है, हमें सवाल करना उस तरह से सिखाया नहीं गया, इसलिए हम अपने बच्चों को सवाल करना सिखाएं
हर चीज पे आक्षेप करना भी सिखाए कि ये ऐसा है तो क्यों है। अगर मैं कन्विंस हूं तो मैं मानूंगी, अगर नहीं कन्विंस हूं तो मैं नहीं मानूंगी। तो इसको कहते हैं लॉजिकल होना, रैशनल होना। तो हर चीज के तर्क, पीछे का तर्क क्या है, वह तर्क ढूंढना बच्चों को सिखाए। उसके पहले हम खुद तार्किक बने। तो हम जो व्हाट्सएप के मैसेजेस सेंड करते हैं, एक बात सोचिए कि क्या मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे किसी का भला होगा क्या फायदा है, इसके पीछे के इंटेंशन हम समझना सीखें। दूसरी बात, जो हम कहते हैं इस पूरी प्राइमरी एजुकेशन का एक मेन एम होता है बच्चों का स्वास्थ्य और खुशहाली को मेंटेन करना। खुशहाली मीन्स वेलबींग यानी इमोशनल है। और हम लोगों को ये मानने में कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि हमारी पूरी की पूरी शिक्षा में इमोशनल डेवलपमेंट इज मिसिंग। हम लोग जिस तरह से पढ़ते आए हैं, इमोशनल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारे देश में डिप्रेशन का लेवल सबसे ज्यादा है, हार्ट अटैक्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और विमेन का भी डिप्रेशन का लेवल करीबन 70 to 85% है, जिसको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। और ऐसा इसलिए कि हमने कभी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो हमारे साथ तो जो हुआ वो हुआ, इन बच्चों के साथ कम से कम उनकी इमोशनल हेल्थ पे, भावनात्मक स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हम कैसे कर सकते हैं? डांटना मारना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, चिल्लाना बंद करना पड़ेगा, है ना, गुस्सा करना बंद करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो ये कि हम जैसा व्यवहार घर में करते हैं बच्चे उसको अपनाते ही हैं। अगर हम बच्चे के साथ बहुत अच्छे लेकिन कलीग्स के साथ अच्छे नहीं हैं, बच्चा वो व्यवहार अडॉप्ट करेगा। अगर आपकी घर में दो लोगों से बनती नहीं है और आप बच्चे के सामने उसको डिस्प्ले करते हैं, वो बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा ही करेगा। सो अच्छा बनो कहने की बजाय अच्छा बना कैसे दिख जाता है उसको दिखाना पड़ेगा व्यवहार में। सो मॉरल वैल्यूज की हम जो बात करते हैं, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज किताबों से नहीं पढ़ाई जाती, व्यवहार से दिखाई जाती है। आप समय से उठते हैं, आप समय पे जागते हैं, सारा काम समय से करते हैं, घर में व्यवस्थाएं हैं, एवरीथिंग इज देयर, बच्चा अल्टीमेटली सीखेगा ही सीखेगा। और दूसरा, बच्चों की इमोशंस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, सारे बच्चे अलग हैं। आज मेरा इनसे कंपैरिजन नहीं है, इनका इनसे कंपैरिजन नहीं है। हर एक की अपनी क्वालिटी है और उस क्वालिटी को नर्चर करना ही हमारा एजुकेशन का और हमारी पेरेंटिंग का मूल उद्देश्य होना चाहिए। हर बच्चे को IAS ऑफिसर नहीं बनना है, वो बन भी नहीं सकता, ठीक है ना। हर बच्चा आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता है, लेकिन वो बेहतर इंसान और अपने क्षेत्र में कुछ और बन सकता है। तो स्कूल आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अपना पार्ट भी निभाना है ना। तो हमारी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, 4 किताबें पढ़ के वो भी हम जैसे हो जाएंगे, नहीं होने देना है ना। तो बच्चों को संवेदनशील बनाइए, प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति सहिष्णुता सिखाइए। एम्पैथी एक वर्ड होता है, वो कैसा फील करेगा जब मैं ऐसा व्यवहार करूंगी, ये जब तक हम नहीं बच्चों को सिखा पाएंगे तब तक हम इस समाज को बेहतर समाज कभी भी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमारे व्यवहार में कितना संयम है, हम लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, हम अपना पेरेंटिंग का पार्ट कितने बेहतर तरीके से अदा करते हैं और बच्चे की भावनाओं को कितना समझते हैं, इतना भी अगर ख्याल रख दिया जाए तो बच्चों को आगे बढ़ने से। और मेरा हमेशा कहना होता है कि टॉप पे पहुंचना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बेहतर इंसान बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बेहतर इंसान है तो आपको कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यही नींव है जब आप बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, यही फाउंडेशन है। बाकी पैसा आ जाता है, प्रसिद्धि आ जाती है, एवरीथिंग कम्स। अच्छाई जो होती है ना अंदर की, वो नहीं आ पाती, क्योंकि वो हमारी जड़ों में डाली जानी चाहिए उसकी खाद। वो खाद अगर नहीं डली होगी तो हम बच्चों को अच्छा इंसान कभी नहीं बना पाएंगे। प्रसिद्ध हो जाएंगे, बहुत कारों में घूम लेंगे, बंगलों में बैठ लेंगे, एवरीथिंग मिलते रहेंगे। तो बस यही है कि एज एन पेरेंट हम बच्चों को ऐसे इस तरह से बड़ा करें कि वो अच्छा इंसान बने, सहिष्णु इंसान बने, सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें दूसरों के साथ, और इस समाज में जो है ना वो अपने हिस्से की नींव की ईंट जो है वो जरूर लगा पाए। दिस इज द ओनली थिंग। और एक और चीज मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ, अपनी अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पे मत ला दिए कभी भी, वो उसे करने दे। हमने जो किया वो हम नहीं कर पाए, ठीक है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, लेकिन बच्चा करेगा ये अपेक्षा रखना थोड़ा सा कठिन वाली बात, तो नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने की इच्छा हो उसको, ये हम उसके अंदर डालें कि सीखिए, हर चीज सीखिए।
अभी मैम ने मुझे बताया वो आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस जानती हैं और भी सीखती रहती है। दिस इज द प्रोसेस वी रियली अप्रिशिएट, वो करना चाहिए हमें, क्योंकि हर उम्र में सीखना चलता है, लेकिन सीखने की तलब जगनी चाहिए, किताबें पढ़ने की तलब जगनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे किताब नहीं पढ़ते, हम टीवी देखेंगे, हम मोबाइल देखेंगे, लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे किताब पढ़ें, नहीं होगा, है ना। तो जो माहौल हम बच्चों से चाहते हैं वो हम बच्चों के लिए क्रिएट करें। तो स्कूल अपना पार्ट बहुत बेहतर तरीके से अदा करता है, क्योंकि स्कूल में वो सारी चीजें हैं, अवेलेबल हैं। हम अपने घर में बच्चों के लिए किस तरह से वो सारा एनवायरनमेंट, तो पेरेंटिंग को एक मैं हमेशा कहती हूँ प्रेयर ही ना, और ये ध्यान रखें कि हमारे पेरेंट ने हमको जैसा बड़ा किया है वो हमेशा आदर्श वे नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें सुधार की जरूरत हो सकती है। समाज की अभी की क्या आवश्यकता है उसको देखकर हमें अपने व्यवहार को भी जांचना चाहिए और नई नई चीजें सीख के बच्चों को भी कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और आफ्टर ऑल 100 बात की एक बात, बड़ा आदमी बने ना बने, अच्छा इंसान अगर बन जाता है तो हमारे जीवन की सफलता उसी में नहीं है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पेरेंट्स को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Bharti ma'am. I would also request our Honorable Chief Guest, Priyanka Verma ma'am, to please share her experience. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ही सीखने को मिल रही हैं बच्चों को देखकर। एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन जो कहा जा रहा है वो किया जाए, क्योंकि हमने ये बचपन से सीखा है कि बड़े जो कहते हैं वो सही कहते हैं, पर होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स करने के बाद समझ पाते हैं कि हाँ बड़े जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो आज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद देखी और मुझे खुद महसूस हुआ कि बिल्कुल सही जो आज हमारे लिए टीचर हैं वो एक तरह से कहा जाए ये छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने ये हमें मोरल दिया है कि जैसा बड़े कह रहे हैं ना मानो, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और पेरेंटिंग तो मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकती क्योंकि आई एम अ सिंगल, अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग बेहतर पेरेंट्स हैं जो कि यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं और इसकी वजह से अवॉर्डेड हो रहे हैं। इवन आप अपने बच्चों को एक अच्छा डिसिप्लिन दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे ग्रेसेस हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं और स्कूल में उस एनवायरनमेंट में खुद आकर यहाँ स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कई पेरेंट्स को यहाँ देखा जो एक लेटर्स लिख के लाए हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको खुद के लिए भी मैं कहूँगी कि ये बहुत इतने सारे लोगों के बीच में बच्चों का खड़ा होना कितना टफ होता है, ये जब पेरेंट्स खुद समझते हैं तो ही समझ पाते हैं कि हाँ हमें अपने बच्चों के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ आकर जब आप बोलते हैं आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है वही कॉन्फिडेंस आपको महसूस होने लगता है कि अब बच्चे को भी देना है। तो दिस इज ग्रेट। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन एक छोटी सी चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये जिस तरह का हेजिटेशन आपने यहाँ लाकर खोला उस हेजिटेशन को खोलिए, क्योंकि आपके बच्चे ही नहीं हैं, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा भविष्य भी है। और आज हम जैसे दूसरे बच्चों को देख के या बड़े लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि काश वो ऐसे होते या हमारा बच्चा भी ऐसा होता। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पे बच्चों को ज़रूरत है बहुत अच्छा गाइडेंस देने की। स्कूल दे रहा है, पेरेंट्स को भी देना है। अच्छा खाना दीजिए, अच्छी बातें कीजिए, राइट और रॉन्ग के पैरामीटर में रखिए, बच्चों को बिल्कुल खोल दीजिए और लैंग्वेज इश्यूज में कभी उन्हें मत डालिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, बच्चे को फ्री कीजिए। जितना उसकी झिझक खुलेगी वो खुद चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। तो आपकी सबसे पहली जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया है और मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों ने मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखने के लिए दी हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर की झिझक खुलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी झिझक खोलिए और ये समझ जाइए कि अगर हमारे अंदर इन चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर अगर है कन्फ्यूज़न तो शायद बच्चे में भी ना हो। तो
तो उसे खोलने की कोशिश कीजिए। बाकी आप सब लोग बेटर पेरेंट्स हैं और यहाँ टीचर्स हैं जो ऑलरेडी इतना अच्छा बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं, यहाँ बच्चे स्पीच दे रहे हैं, यहाँ बच्चे राम जी की स्तुति कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेस्ट हो ही नहीं सकती है। ये इतना हेल्दी इन्वायरमेंट है जो बच्चों को डेफिनेटली बेटर बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ कॉम्बिनेशन इक्वल होना। आप लोग अपने घर में भी बच्चों को ध्यान दीजिए। एंड लास्ट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बच्चों को हम्बल बनाइए। मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ जिसमें हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों को एनिमल्स के साथ भी बहुत ही हम्बल होना चाहिए। अगर आपका बच्चा एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ या किसी भी ऐसी व्यक्ति के साथ जो उससे बहुत ज़्यादा नीचे है या गरीब है या बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपका बच्चा हम्बल है, विच इज़ मीन आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा बहुत सही चल रहा है। उसके अंदर अगर हम्बलनेस है, विच इज़ मीन वो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डेफिनेटली लेकर आएगा। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को एनिमल्स के साथ, नेचर्स के साथ बिल्कुल अटैच रखिए, ताकि अगर वो इन चीज़ों को देखेगा और गलत सही समझेगा तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छा बच्चा और एक अच्छा इंसान भी बनेगा। ओवरऑल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर पूनम मैम कि यहाँ आए और इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला कि छोटे बच्चे, डेफिनेटली वो जो बात है बचपन से अभी तक घुसी हुई थी वो अब समझ में मुझे भी आ रही है कि सच कहते हैं कि जो बड़े कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा एक तो तालियां कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और अपने बच्चों को बूस्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे टीचर्स जिन्होंने बच्चों को रियली इतने अच्छे से ट्रेन किया और भारती मैम जो यहाँ बैठे हुए इन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस दिया है। मुझे लगता है इन सब के अलावा और कुछ बचा नहीं है जो मैं आप लोगों को सिखाऊं। ये छोटी छोटी बात थी जो मुझे फील हुई कि बच्चों को बस सिर्फ झिझक खोलिए और उनकी जो हेजिटेशन है उसे हटाने की कोशिश कीजिए। बस बच्चा हेजिटेशन से हटेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. We also have with us a third guest, Miss Mahua Chatterjee, ma'am. She's from Lucknow. She's a Kathak dancer and has performed in various events. She's also working with Anti-Corruption Agency, UP government. She's a social worker and she works for the welfare of special children. Now I would request, please ma'am, to please come upon the stage and share your experience. सभी को प्रणाम, नमस्कार। एंड आज का जो ग्रेजुएशन डे है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच ऑफ यू। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि मैं क्या बोलूँ, बट आई एम प्राउड टू बी हियर। Yesterday, one of my friend, Kishore, he just told me that there is a program here, graduation day. You can come if you want to see. And today I am going back to Lucknow also. I told him that okay, I will try my level best. I didn't know that I would have missed today. And Pyali ji, she is also my childhood, I can say childhood friend. I just came to meet with her. And such a welcome from them, principal ma'am, all staffs, and Chimke. I have no words. I am speechless, really I am speechless. I can only say congratulations to each one of you, teachers, parents, and students. Those who are like kids growing up, I can bless them. I'm very sorry I can't speak. I'm really speechless, but speak. I'm really proud of myself that I am here, and thank you. Now I would like to request respected principal ma'am, vice principal ma'am and headmistress ma'am for felicitation of the guests. I would like to invite Bharti ma'am on the stage, please.
Priyanka ma'am, please come. Mahua ma'am, please come. We really thank you to all of you for our leader, our mentor, none other than our respected Principal Ma'am to come upon the stage to address the gathering. Good afternoon, everyone. I would like to thank each and everyone present over here. Thank you, my dear guests, for being here and sparing your time and sharing such wonderful tips for the parents. Yeah, I'm not left with anything to speak right now. But one thing मैं आप सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अब आपके बच्चे क्लास 1 में जाएंगे. मैम ने बहुत सारी बातें बताई. सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी. अगर अभी आपका बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, आगे लाइफ में कभी नहीं सीख पाएगा. क्योंकि हम बड़े लोग डिसिप्लिन सीखने में बहुत रिजिड होते हैं. कोई भी चीज सीखना है तो हम अपना दिमाग लगाते हैं. अभी ये जो बच्चे हैं बहुत सरल हैं. इनको आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे और वो उनके लिए ही अच्छा है. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है. सुबह टाइम पे उठना, बच्चों को सनराइज देखने की आदत डालिए. ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा है, सुबह सुबह हम बच्चे को कैसे जगाएं. रात में जल्दी सुला दीजिए, सुबह उठाइए, सनराइज जरूर दिखाइए बच्चे को, क्योंकि सनराइज बहुत सारी चीजें सिखाता है हमको. सनसेट से ज्यादा मैं सनराइज को मानती हूँ. सनसेट सुंदर है, होता है उस समय, बट आई थिंक सनराइज इज द बेस्ट थिंग. वो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. रोज सुबह उठ के सूर्य भगवान को देखें, प्रणाम करें और सुबह का जो माहौल होता है उस चीज को एंजॉय करना बहुत जरूरी है. दिन भर के तनाव को फेस करने के लिए हमें सुबह उठ के चिड़िया जो चहचहाती है सुबह सुबह वो सुनना चाहिए. सुबह की जो ठंडी हवा है उसको महसूस करके कम से कम 10 मिनट अपने लिए टाइम स्पेंड करना सिखाइए बच्चों को. हमेशा किसी के साथ रहना जरूरी नहीं है, हमें खुद के साथ रहना आना चाहिए. अगर हम खुद के साथ रहना सीख जाएंगे तो हम कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे. जो मैम ने बोला कि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हैं, उसका रीजन ये है कि हम कभी अकेले रहना जानते ही नहीं है. हमें कोई ना कोई चाहिए साथ में. तो खुद से रहना आना चाहिए. लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल. उसके लिए लोगों की जरूरत होती है, बट अपने आप में सक्षम होना बहुत जरूरी है. हर चीज में बुक्स पढ़ने की आदत डालिए बच्चों में. बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स वन कैन हैव. लोगों के पास समय ही नहीं रहता जो किताबें पढ़ना जानते हैं, क्योंकि उनको किसी और की जरूरत नहीं होती है. एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को हर काम में सक्षम बनाइए. बच्चे को झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, कपड़े धोना, सब कुछ आना चाहिए. मैं जानती हूँ कि आज के डेट में 1 या 2 बच्चे हैं, बहुत लाड़ प्यार से आप पाल रहे हैं. इसका मतलब बड़े होने के बाद खाना ही तो बनाना है, काम ही तो करना है. जब अभी सिखाओगे नहीं तो बड़े होने के बाद कैसे करेंगे वो बच्चे? उनके लिए वो बर्डन हो जाएगा, बोझा हो जाएगा. 12th के बाद बच्चा हॉस्टल में जाएगा रहने, बाहर का खाना खा खा के सब परेशान हो जाते हैं. अगर खाना बनाना आता है, अपना बिस्तर बनाना आता है, आप सोचिए बच्चे की लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी.
12th के बाद बच्चा कॉलेज जा रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, साफ सुथरा रहना आना चाहिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है करना, बहुत गंदे माहौल में कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप में से कोई हॉस्टल में रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप मेरे बात से वाकिफ होंगे कि हॉस्टल लाइफ इज द डर्टीएस्ट लाइफ। एंजॉय करते हैं बच्चे, लेकिन बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, अपने अंडर क्लोथ्स भी नहीं धोते हैं लड़के लड़कियां, जो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। अपने शरीर को स्वच्छ रखना हर इंसान को आना चाहिए, और क्यों रखना है आपको ये अभी से सिखाना है। भले उसको धोना नहीं आएगा, लेकिन हैबिट तो डाल सकते हैं, बाद में आप उठा के धो लीजिए। कोई मदर सेटिस्फाइड नहीं होगी अगर उसका बच्चा अंडर क्लोथ्स धो के सुखा दे, लेकिन बच्चे में हैबिट को डेवलप करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, मेड आती है, मशीन में धोते हैं, कुछ भी हो, अपना खाना खाने के बाद प्लेट उठा के जगह पे रखना, स्कूल से आने के बाद शूज उतार के जगह पे रखना, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमको वो जगह पे मिले, टाइम वेस्ट ना हो, ढूंढना ना पड़े। उसके लिए जितने पेरेंट्स यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की चाबी लाके जगह पे रखना। रोज सुबह बहुत लोगों के घर में हंगामा होता होगा, गाड़ी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है। So you're wasting your time and at the same time you're spoiling your mood also. हस्बैंड है तो वाइफ पे चिड़चिड़ा रहे हैं, या वाइफ है तो हस्बैंड पे चिड़चिड़ा रहे हैं, कभी चाबी मिलता नहीं, कभी कोई चीज मिलता नहीं घर में। क्यों? क्योंकि हमने उसको जगह पे रखा ही नहीं है। और ये बच्चे की जो 2 आंखें और कान है ना, लगातार आपकी तरफ ही रहते हैं, भले बच्चा खेल रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चे की जो सरलता है उसको रहने दीजिए, उसके दिल में आप जो भरेंगे वो बांटेगा। आपके दिल में प्यार भरा रहेगा, आप सब तरफ प्यार बांटेंगे। So fill your heart with love, so that the child goes and spreads love around the society and lives happily. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, वो बहुत ज्यादा दुनिया में बहुत चीजें सीख के आएंगे, लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा है ना, वो अफेक्ट नहीं करेंगे बच्चे पे। उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मैम ने बहुत सारी बातें बताई, आई डोंट वांट टू टच इनटू दैट, सो थैंक यू सो मच। वन मोर स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट की डायरी पढ़िए प्लीज, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़िए और फॉलो करिए। टीचर के संपर्क में रहिए, कहीं भी आपको डाउट आता है किसी भी चीज में, टीचर से एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैम मैं आपसे कब बात कर सकते हैं, हम उस टाइम पे कॉल करिए। कभी भी किसी भी टाइम पे प्लीज कॉल मत करिए, क्योंकि टीचर की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। कई पेरेंट्स रात के 9 बजे 10 बजे भी कॉल करते हैं, सो दैट इज नॉट राइट। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि एक टाइम मेंटेन करिए, और जो भी टीचर बोलती है, टीचर को सपोर्ट करिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा आपका है। आपके बच्चे के लिए ही टीचर सब कुछ कर रही है, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली योर चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो इनटू अ वंडरफुल सिटीजन, which is the need of the hour. इंडिया में आज की डेट में वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गई हैं, ख़त्म पे है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन वैल्यूज को जो हम बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं, आप भी कैरी करिए और एक वैल्यूएबल सिटीजन बनाइए उसको। देश को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। पेट्रियाटिक बनाइए बच्चे को, देशभक्ति सिखाइए।
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं स्पिरिचुअल, रिलीजन, इन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। देशभक्ति सिखाना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, 10 मिनट्स बच्चे को ध्यान करना सिखाइए, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके प्रति। उससे मन की शांति मिलती है, और जिसके मन में शांति रहेगी उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। All the support, without your support, this celebration, this graduation day would not have been this great. So thank you everyone, and thank you all of you. Words always inspire our little ones. This is not a goodbye. It's a promise to meet again, to create and share more such beautiful memories. We wish all of our little graduates great success in their journey of education. With this, I would like to invite our KG coordinator, Ms. Maya Naya ma'am, to present the vote of thanks. A warm and graceful good afternoon to our most valued Honorable Chief Guest, Madam Principal, Vice Principal Ma'am, Headmistress Ma'am, and teachers, parents, and my dear students. First of all, I would like to thank our Principal Madam, Poonam Sharma, who gave me an opportunity to speak on this auspicious occasion, and it's a matter of honor for me. I would like to express my sincere gratitude to Vice Principal Ma'am and Headmistress Ma'am throughout the guidance or support. On behalf of Hema family, I extend my gratitude to our chief guests who spared their valued time for their busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Also, I would like to extend my sincere thanks to all the parents present here. Without your support, children won't be able to achieve excellence. Your patience, love and support have helped them grow in all the areas. We are grateful for the memories we have made and the lessons we have learned. Thank you for celebrating this special day with us. We are excited to continue our journey ahead with all the knowledge and value. Thank you so much for attending this event. Your participation and suggestion is always help us. I would like to thank our lovely participants, comparers, for making this event a great success. Also, I would like to thank our dear teachers and support staff along with the logistic team for the complete preparation of this graduation program. So, thank you so much once again, and congratulations to our little graduates. I would like to request to please stand straight for national anthem. पाँच करके बच्चे हम आपको दे रहे हैं।
जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी अपन कुछ शुभारंभ करते हैं ना, ये कृपया आप मान के रखे या भगवान का नाम से अपन शुरू माया को बुला लो या गंगा को बोलो, किसी को कोई बोलो।